Good morning, my dear students. I hope you all are enjoying this English class on the digital platform. I welcome you today again on this digital platform of learning. So this is present English class, and you have been studying from moment lesson number 4, the kingdom of fools. So I'll continue. So till here I have taught you. So what we saw? We saw that both the saint and the disciple, Guru and the disciple, they had been in the town, okay? And they saw that everyone was sleeping, okay? Even they were sleeping during the day, okay? Even the pets, I mean the cows, buffaloes, goats, they were also taught to sleep. So the Guru and the disciple, they were very astonished. They were very amazed to see that nobody was seen in the town. Everybody's houses were shut, and nobody was seen. So this was a very shocking incident for them. They were just shocked to see the town very silent. And after that, come to the next slide. Okay. The two men were hungry. Now that the shops were open, they went to buy some groceries. तो ये दोनों गुरु और शिष्य, ये लोग घूमते रहे, टहलते रहे, सारा दिन शहर में भटकते रहे, उस राज्य में सारा दिन उस राज्य में भटकते रहे। और उसके बाद क्या हुआ? भटकते भटकते वो लोग बहुत थक गए, क्योंकि वो सुबह से कुछ खाए पिए नहीं थे और वो लोग भूखे थे, और इसलिए वो लोग गए मार्केट में, गए कुछ ग्रोसरीज खरीदने के लिए, किराने का सामान खरीदने के लिए। To their astonishment, they found that everything cost the same. और वो लोग बहुत ही चौंक गए यह देखकर, बहुत ही दंग रह गए। They were very shocked. They were very surprised to see that everything in the town cost a single dudu. Dudu is a 1 rupee. Okay, dudu मतलब 1 rupee समझना है, ठीक है? Because it's a currency which is a currency name in कर्नाटका, क्योंकि एक कन्नड़ स्टोरी है। Basically this is a Kannada story, and that's why they have used that language. Okay, basically the writer has used dudu to impress people. Okay, so everything cost a single dudu, means 1 rupee. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a dudu. वो लोग कुछ भी खरीदते, चावल खरीदे, एक बोरा चावल खरीदे, एक बंच बनानास खरीदे। बंच बनानास बोलना चाहिए, या तो एक बोरा चावल खरीदते या बनानास खरीदते, उनको 1 डुडू देना पड़ता है। देखो यहाँ पे सिग्नल दिया गया है 1 डुडू का। ओके, तो 1 रुपये में उनको इतना सारा चीज मिल जाता था। ओके, द गुरु एंड डिसाइपल वेर डिलाइटेड। गुरु और जो शिष्य थे ये बहुत ही डिलाइटेड, मीन्स दे वर वेरी हैप्पी, दे वर रिजॉयस्ड। ओके, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे इतने सस्ते सामान को देखकर। हाँ, एक बोरा चावल मानो 1 रुपये में मिलेगा, कौन नहीं जाएगा खरीदने? ये तो बहुत ही अजीब बात है। तो इतना सस्ता चीज़ उन लोगों ने कभी नहीं देखा था। इसीलिए मार्केट में जब जाते हैं और सारे सामान को 1 रुपया में पाते हैं, तो उनको बहुत आश्चर्यचकित होते हैं और बहुत खुश भी होते हैं साथ ही साथ, क्योंकि ऐसा सिचुएशन उन लोगों ने कहीं नहीं देखा।
they had never heard of anything like this. मैं कह रहा था ना कि they had never heard about this, that a thing, a sack of rice could be sold at 1 rupee. They have never heard about this. They could buy all the food they wanted for a rupee. 1 रुपया में वो सारा भोजन खरीद। हम लोगों को मालूम है जो क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे Come to the next paragraph. When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools. जब वो लोग ये भोजन को तैयार कर लिए थे, मतलब बना लिए थे, खाना बना लिए थे और खा लिए थे, तो गुरु को अनुभव हुआ कि दिस वाज ए किंगडम ऑफ फूल्स। उनको यह अनुभव हुआ, उनको यह ज्ञात हुआ कि यह राज्य जो है ये मूर्खों का राज्य है। और मूर्खों का राज्य में अगर ज़्यादा दिन कोई रहता है तो उसके लिए ठीक नहीं है। मूर्खों का राज्य में ज़्यादा दिन रहना ठीक नहीं है। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी द पीपल ऑफ दिस किंगडम, the minister, the king, they were all called fools, even the advisors, because everything what happened in other kingdom, they just did the opposite of what happened in other kingdoms. Okay, and it wouldn't be a good idea for them to stay there. तो गुरु को साथ ही साथ यह भी अनुभव हो गया, यह भी ज्ञात हो गया कि यहाँ मूर्खों का राज्य में ज़्यादा दिन रहना उचित नहीं है। गुरु को आभास हो गया, he realized that anything can happen here, so it's wiser, it will be a wise act to move away from this kingdom, the Guru thought, because the Guru was very clever, he was known for his wisdom and knowledge. Okay, so he knew very well that anything could happen anytime over here. So it is better to move away from here. This is no place for us. गुरु अपने शिष्य से बोलने लगे कि ये हमारे लिए उचित जगह नहीं है रहने का। यहाँ हम लोग भटकते हुए आ गए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा दिन रहना, ज़्यादा देर रहना बिल्कुल उचित नहीं है। हमारे रहने का स्थान उचित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। लेट्स गो, ही सेड, ठीक है, और अपने शिष्य से बोले कि चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ रहना उचित नहीं है। दिस इज नॉट एट ऑल feasible to stay over here in this kingdom, so let's move away from here, he told his disciple. But the disciple didn't want to leave the place. लेकिन ये जो शिष्य थे वो जगह को छोड़ना नहीं चाहते थे. He never wanted to leave the place. Everything was cheap here. सब कुछ यहाँ सस्ता था. Everything was cheap here. All he wanted was good cheap food. जो भी इन्हें चाहिए था, डिसाइपल को क्या चाहिए था? सस्ता अच्छा खाना. और सस्ता अच्छा खाना जब यहाँ मिलना शुरू हो गया, देखा कि यहाँ सस्ता खाना मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, पेट भर के खाने को मिल रहा है, और खुद ही पेटू था वो, तो क्या करता? उसके दिमाग में आ गया कि मुझे यहाँ से नहीं जाना है. He stuck to that place. Okay? He just stuck to that place. He never wanted to go away from the kingdom of fools. Who? The disciple. Because the disciple was very greedy. He wanted to get all the things he wanted. He wanted to eat his belly full. Okay? So, he didn't think of moving away from there, from the kingdom of fools. Okay? Because the things sold there were very cheap and very good also. They were good in quality and also they were cheap. The Guru said, Guru ने कहा, They are all fools. गुरु ने कहा अपने शिष्य से कि ये सब जो हैं, यहाँ के जो लोग हैं, ये सारे बेवकूफ़ हैं. यहाँ के राजा, यहाँ के मंत्री,
यहाँ के सलाहकार सारे मूर्ख हैं, यहाँ रहना ज़्यादा दिन उचित नहीं है। दिस won't लास्ट वेरी लॉन्ग, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। कितना दिन तक अपना खजाना खाली करके चलाते रहेंगे राजा? राजा अपना खजाना खाली करते जा रहे हैं, अपने ट्रेजर्स जो है, अपने ट्रेजरी खाली करते जा रहे हैं। तो ये जैसे खाली हो जाएगा उसके बाद क्या होगा? तब 1 रुपये में जो चीज़ बिक रहा है 100 रुपये 1000 में बिकेगा। तो ऐसा भी हाल हो सकता है। तो गुरु अच्छे से समझ गए कि आज 1 रुपये में मिल रहा है, कुछ दिन बाद हो सकता है 1000 में खरीदना पड़े। सो ही टोल्ड हिज डिसाइपल टू गो अवे फ्रॉम हियर एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। और गुरु ये भी बोले कि कोई कह नहीं सकता, तुम भी नहीं कह सकते हैं, तुम भी नहीं कह सकते हो कि तुम्हारे साथ तो क्या व्यवहार करेंगे, किस प्रकार से तुम्हारे साथ पेश आएंगे, हाउ दे विल बिहेव विथ यू, यू कांट से। सो बी केयरफुल। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम। लेकिन उनका जो शिष्य था, गुरु का जो चतुर बात थे, जो इंटेलेक्चुअल थे, गुरु उसके बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, वो अच्छी बात बता रहे थे, सच्चाई से अवगत करा रहे थे। ओके, सच्चाई क्या हो सकती है इस राज्य में, व्हाट कैन बी द ट्रूथ, व्हाट कैन हैपन ओवर हियर। ही वांटेड टू शो हिम द रियल कैरेक्टर ऑफ द किंगडम, रियल कैरेक्टर ऑफ द किंग, रियल कैरेक्टर ऑफ द मिनिस्टर। बट द गुरु never listened to the disciple never listened to the guru's wisdom. He wanted to stay. उसने फैसला किया यहाँ रहने का। ओके, उसने इच्छा व्यक्त की कि वो वहीं रहेगा। कौन? डिसाइपल। द गुरु फाइनली gave up and said, अंत में गुरु देखे कि डिसाइपल उनका शिष्य नहीं जाने से इनकार कर दिया, तो उसको वहीं पर छोड़ दिए, अपने शिष्य को वहीं छोड़ दिए और खुद वहाँ से निकल पड़े। गेव अप एंड सेड, हार मान गए, अपने शिष्य को नहीं मना पाए। तो लास्ट में क्या बोले? डू व्हाट यू वांट, तुम्हें जो करना है करो, अब मुझे दोष मत देना। आई एम गोइंग एंड लेफ्ट, और यह बोलकर चले गए। बोले कि ठीक है, तुमको यहाँ रहना रहो, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ। और वो यहाँ से निकल गए गुरु। द डिसाइपल स्टेड ऑन इन एट हिज विल एवरी डे। ये जो शिष्य था वहीं पर रुक गया, उसी शहर में, उसी राज्य में रुक गया, भरपेट खाने के लिए। भरपेट दूसरी जगह भी मिल रहा था, लेकिन यहाँ कुछ एक्स्ट्रा, मतलब बहुत सस्ता मिल रहा था। तो सोचता था खाली खाते जाए, खाते जाए, खाते जाए। ओके, उसके दिमाग में यही था कि खूब खा खा कर हम मोटे हो जाएं, तगड़े हो जाएं। कौन? डिसाइपल, शिष्य, गुरु का शिष्य। तो वो सारे दिन खाते रहता था, सारे दिन खाली खाने को सोचता था। ठीक है, इतने सस्ते मिलते थे वहाँ। बनानाज एंड घी, केले खाता था, केला का पूरा ये ले लेता था, वो जो बंच ले लेता था। ठीक है, और पूरा खाते रहता था सारा दिन। फिर घी भी सस्ते थे, 1 रुपये थे, तो वो भी घी भी खाता था खूब। चावल भी खाता था, राइस एंड व्हीट। ही यूज्ड टू ईट घी, बनानास, राइस एंड व्हीट एंड ग्रीव फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल। और ये मोटा हो गया, तगड़ा हो गया। कैसा? स्ट्रीट साइड, गली में जो घूमते हुए दिखाई देते हैं ना बुल, हाँ, सांड जो दिखाई देते हैं, वैसा हट्टा कट्टा हो गया। ठीक है, देखो समझ में आ गया, हो गया, समझ में आ गया है। ठीक है, ये बुल को दिखाया गया है। और ये डिसाइपल है, ये डिसाइपल है। ये इसको तुलना किया है ऑथर ने, बुल के साथ तुलना किया है। तो बुल कितना हट्टा कट्टा रहता है, कितना तगड़ा रहता है, इसी प्रकार से ये हो गया था। ठीक है, खा खा कर मोटा तगड़ा हो गया था। कौन? डिसाइपल। सोचो, क्यों हमेशा खाने के बारे में सोचता था, उसको और कुछ नहीं भाता था। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, this is the end of today's lesson. Okay, I will be continuing this lesson again in the next class. So my dear students,
Now, doubts classes? So far doubt class is concerned, if you are having any doubt, please tell me. किसी कोई डाउट है? No doubt. Why? You must ask me any doubt you have. Tell me. अगर तुम नहीं पूछोगे तो हम पूछेंगे. I'll ask you. What is the meaning of delighted? Happy. What is the meaning of doo-doo? What is the meaning of fools? No. Idiots, yes. So, you don't have any doubt? Okay. Anybody else? Anybody else? No doubts. Okay, my dear students, thank you for today's class. I'll continue the lesson in the next class again.